Hello everyone. So wishing you all a very happy new year 2026. नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आशा करता हूं कि नए साल में एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ प्रिपरेशन करेंगे, मोर डिसिप्लिन प्रिपरेशन करेंगे सो दैट अपने यूपीएससी लक्ष्य के या कोई भी और एग्जाम जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके करीब आ सके। तो इसी कामना के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ लेट अस स्टार्ट द न्यू वीडियो। सो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि वाई द एफपीआईज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर पुलिंग देयर मनी आउट फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इसको एनालाइज करेंगे। सो न्यूज क्या आ रही है? 2025 में टिल दिसंबर 2025 फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, दे आर सेलिंग देयर stocks in the Indian stock markets and they are taking their money out. So अभी तक कुल they have sold 1.6 ट्रिलियन रुपीस, अगर डॉलर में देखें तो लगभग 18 बिलियन डॉलर्स ऑफ शेयर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बेच चुके हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में। Alright, so they have sold around 18 billion of shares during the year, and which is the highest annual outflow on the record. अगर कैलेंडर ईयर 2025 की बात करें, so जो 8 महीना रहा है, दे हैव सोल्ड देयर इक्विटीज एंड इन द 4 मंथ दे हैव बॉट द इक्विटीज। सो किसमें उन्होंने खरीदा हुआ है? अप्रैल, मई, जून एंड अक्टूबर। ऑलराइट, सो इस लहजे से या इस हिसाब से 2025 हैज बीन द वर्स्ट ईयर फॉर इक्विटी flows, which has surpassed the previous record outflow of rupees 1.21 lakh crores in 2022. तो 2022 में 1.21 लाख करोड़ का आउटफ्लो था और अभी तक 2025 में देखें तो इट हैज बीन 1.6 ट्रिलियन रुपीस का आउटफ्लो हो चुका है, and coming after a marginal net inflow of rupees 427 crores in 2024. So 2024 में it was a marginal total inflow of net 427 crores. In contrast, 2023 has seen a robust 1.71 lakh crores equity investment inflows. All right. So यहाँ पे इस न्यूज में हमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातों को कंसीडर करना है। देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो फर्स्ट वी हैव सीन दैट FPIs are taking their money out from the Indian equity market. बट यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट न्यूज इज that the net inflow in Indian debt market by the FPI. So Indian का जो bond market है वहां पे FPI has been the net investors और they are investing in the government bond. तो ये ध्यान रखना है, इक्विटी में they are selling and taking out their money, but in the government bond में अगर आप बात करेंगे तो they have been the net investors in the Indian debt market. All right. So in contrast to the equities, FPI showed a clear preference for debt, investing a net rupees 59,000 crores in Indian debt in 2025. So this you have to keep in mind. Why they are investing? Because one of the crucial factor has been India's inclusion in global bond indices. All right. So the phased inclusion of Indian government bonds under the fully accessible route in indices such as the JP Morgan's Global Emerging Market Index, this has created a steady demands from passive funds. So one of the things जो important है कि there have been the net inflow by FPIs in the Indian debt market. That is the one thing. Second important news जो हमारी इसमें थी, that there has been a strong buying from domestic institutional investors. तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जब हम इंडियन इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं तो there has been you can say divergence in the behavior of foreign institutional investors and domestic institutional investors. Foreign institutional investors जहां एक तरफ they are selling their stocks, they are selling their you can say equity in the Indian stock market, वहीं पे domestic institutional investors are you can say buying in the
इंडियन इक्विटी मार्केट। ऑलराइट, सो ये डाइवर्जेंस एक नोटिस हुआ है। सो टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज in 2025 have amounted to a record high of $86 billion as of December 2026. Or one of the very important reason for this strong buying from the domestic institutional investor has been the more and more people investing in systematic investment plan, the rise in investment in SIP, राइट, मेनली फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव सीन इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का नेट आउटफ्लो है इंडियन स्टॉक मार्केट में, बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का दे आर नेट इन्वेस्टर्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड एफपीआई की बात अगर हम कर रहे हैं इंडियन डेट मार्केट में, सो दे आर द नेट इन्वेस्टर्स। सो ये दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड आउट अ रिकॉर्ड अमाउंट from Indian equities in 2025. So close to, no, you can say $18.5 billion का आउटफ्लो है इंडियन इक्विटी मार्केट में बाय द एफपीआईज। 2022 में भी ये आउटफ्लो था, देन 2018 में भी आउटफ्लो था, एंड 2008 द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उस टाइम पे भी वहां पे आउटफ्लो हम देख रहे हैं। ऑलराइट, सो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकता है। कई बार वो डायरेक्शन वाइज पूछता है। फॉर एग्जांपल, देयर हैज बीन कंसिस्टेंट राइज इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो कुछ भी इस तरीके से वो पूछ सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, मूविंग अहेड, अगर सेक्टोरल एनालिसिस की बात करें कि किस सेक्टर से ज्यादा पैसे निकाल रहे हैं, ज्यादा इक्विटी सेल ऑफ कर रहे हैं, या किस सेक्टर्स में इनकमिंग हो रहा है, तो वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट इज जो आईटी स्टॉक्स वाले सेक्टर्स हैं, दे हैव अकाउंटेड फॉर नियरली 50% ऑफ द आउटफ्लो। क्या कारण रहा है इसका? मेनली ड्यू टू कंसर्न्स ओवर यूएस ग्रोथ, क्योंकि आप जानते हो मेनली जो इंडियन आईटी सर्विसेज है, दे प्रोवाइड सर्विसेज, देयर सर्विसेज टू यूएस मार्केट एडवांस इकोनॉमीज। ऑलराइट, तो अगर एक बार यूएस में जो देयर हैज बीन कंसर्न्स ओवर यूएस ग्रोथ, तो थोड़े से वहां पे वीक प्रोजेक्ट्स रहे हैं, तो उतने प्रोजेक्ट आईटी सेक्टर्स को दे आर नॉट गेटिंग। ऑलराइट, सो इट हैज बीन मेनली ड्यू टू यू कैन से concerns over US growth, a weak capex cycle, and pressure on net interest margin. All right. So if you're seeing this table, यहाँ पे clearly you will see that IT sector हो गया, FMCG हो गया, power sector हो गया, health care हो गया, consumer durable हो गया, financial services हो गया. They have clearly seen that FPOs are dumping their stocks in these sectors. All right. So incoming कहाँ है, where the purchase is happening? Like telecommunications, then others, oil and gas and services. These are some of the sectors where the more and more inflow is happening. Alright, तो ये एक sector wise analysis है। अगर एफपीआई की ओनरशिप की बात करें ऑफ इंडियन कंपनीज, तो दिस हैज हिट द 15-year low in 2025, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ जब वो अपने स्टॉक सारे बेच के जा रहे हैं, तो उनकी जो एफपीआई की ओनरशिप है इन द इंडियन कंपनीज, दैट हैज डिक्लाइन एंड इट हैज हिट 15 years low। ऑलराइट, तो by the September quarter, foreign ownership of Indian equities slipped to a 15-year low of 16.9%। ऑलराइट, 2024 में कितनी थी ये? That was 17.4%। ऑलराइट, बट यहीं पे while domestic mutual funds holding has climbed to a record high of 10.9% from 10% in the 2024 end। ऑलराइट, सो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो खरीद रहे हैं इंडियन स्टॉक्स को, सो उनकी ओनरशिप इन द इंडियन कंपनीज बढ़ रही है, एंड इट हैज क्लाइम टू 10.9%। ऑलराइट, वहीं पे जो एफपीआईज हैं, दे आर सेलिंग देयर इंडियन स्टॉक्स, और जो ओनरशिप है उनकी इंडियन कंपनीज में, दैट इज डिक्लाइनिंग, एंड इट हैज डिक्लाइन टू यू कैन से 16.9% इन सितंबर 2025। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑलराइट,
सो दिस थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। वहीं जब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जो बेंचमार्क स्टॉक एक्सचेंज हैं, दैट इज एनएससी एंड बीएससी, अगर उनको हम कंपेयर करें अपने रीजनल पीयर से, तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि दे हैव द इंडियन स्टॉक्स benchmark have underperformed. They have grown only around 10%, वहां जहां पे रीजनल बेंचमार्क्स हैव ग्रोन टू 26% एंड 30%। तो ये भी एक चीज ध्यान रखेंगे कि इंडियन स्टॉक बेंचमार्क्स हैव अंडर परफॉर्म्ड इन 2025 एज कंपेयर टू रीजनल पीयर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो निफ्टी और सेंसेक्स इज ओनली हैविंग अ ग्रोथ ऑफ 10% और 9%, वेयर एज द रीजनल peers they are having the growth of 30% and 26%। ऑलराइट, तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कि क्या रीजन रहा है कि वाई एफपीआईज आर सेलिंग ऑन अ रिकॉर्ड बेसिस। ऑलराइट, क्यों इतना ज्यादा सेल कर रहे हैं वो अपने स्टॉक्स को इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएस में देयर हैज बीन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, वहां पे बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। तो जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो दे आर मूविंग टूवर्ड्स रिस्क फ्री मार्केट और रिस्क फ्री रिटर्न्स की तरफ जा रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग देयर डॉलर्स विच दे हैव पुट in the Indian stock market and they are investing in the higher bond yield of the US। तो एक ये चीज है। सेकेंड थिंग है कि there has been a continuous strengthening of US dollar। इंडिया में भी हम देख रहे हैं रूपी has been depreciating vis-a-vis US dollars। तो जब स्ट्रॉन्ग डॉलर जब हो जाता है, इट हैज लेड टू यू कैन से करेंसी रिस्क, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे इंडिया में जब हम देखते हैं तो रूपी इज डेप्रिसिएटिंग। ऑलराइट, तो उनके जो प्रॉफिट्स आएंगे, जो उनके रिटर्न्स आएंगे, वो कम हो जाएंगे, बिकॉज उनके जो रिटर्न्स आने हैं दैट इज डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स। ऑलराइट, तो जब आपका रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स जो एफपीआई के होंगे वो कम हो जाएंगे। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो सेलिंग द स्टॉक्स। Another important thing which is there is that there is a global risk aversion and geopolitical uncertainty across the globes। Alright, क्यों इतनी uncertainty है, क्यों इतना दिक्कतें हैं? There has been concerns over energy prices, supply chain disruptions देख रही है, and there has been huge trade related tensions going on across the world। Alright, तो इतनी जब भी आप देखोगे, जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो जाती है तो इन्वेस्टर्स में रिस्क अवर्जन हो जाता है। तो वो ऐसी जगह अपना पैसे लगाना चाहता है जहां पे गारंटीड और रिस्क फ्री रिटर्न आए। दैट इज व्हाई अभी जो एफपीआईज है वो दे आर मूविंग टूअर्ड मोर सेफर एसेट्स बिकॉज ऑफ दीज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो सेफर एसेट्स से दे आर मोर हैविंग प्रेफरेंस टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन यूएसए, इन्वेस्टिंग इन यूएस बॉन्ड्स, ऑलराइट, रादर देन इन्वेस्टिंग इन इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज। तो थोड़ा सा वहां पे रिस्की हो सकता है उनका इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, दैट इज व्हाट द आइडिया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यूएशन कंसर्न्स इन इंडियन मार्केट। तो एक जो बात देखी जा रही है कि इंडियन इक्विटीज आर, यू कैन से इंडियन स्टॉक मार्केट्स जो स्टॉक प्राइस है, दे आर ट्रेडिंग एट वेरी प्रीमियम वैल्यूएशंस, ऑलराइट, कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग मार्केट। तो ये बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं। दैट इज व्हाई एफपीआईज अभी क्या कर रही हैं, वो अपना शॉर्ट टर्म या टैक्टिकल प्रॉफिट बुकिंग कर ले रही हैं कि हाँ बहुत प्रीमियम पे अभी चल रहा है तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, मोस्टली इन द लार्ज कैप स्टॉक्स। ऑलराइट, तो दैट इज अनदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स बिकॉज वैल्यूएशंस आर हाई, तो इनकमिंग नहीं आ रहा है अभी, बट स्टिल दे आर प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं, अपनी इक्विटी सेल कर दे रहे हैं इन द मार्केट एंड दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स। So that is another thing. And another crucial aspect which is also there is the recent you can say US tariff sanctions जो हो चुके हैं on India's exports। There has been delay in the US India FTA trade talks, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी एक चीज नहीं हो पा रहा है। उससे भी एक नतीजा ये निकल के आ रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स बेच के
यूएस की तरफ जा रहे हैं. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस यू कैन से दैट व्हाई नो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर सेलिंग देयर स्टॉक्स इन द इंडियन इक्विटी मार्केट. ऑलराइट. तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट एनालिस्ट आर सेइंग इन 2026 में जो न्यू ईयर है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो व्हाट दे आर सेइंग इज इंडिया कुड रीगेन फेवर अमंग द ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द 2026. क्यों क्यों ऐसा हो सकता है? व्हाट आर द फ्यू रीजंस कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक मार्केट विल ईज, earnings will stabilize. All right. Another important thing is that economic growth outlook stays intact. तो हम इंडिया में जब देख रहे हैं तो स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, स्टडी जीडीपी ग्रोथ हो रहा है. गोल्डी लॉक फेज है इंडिया का. इंटरेस्ट आर जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं दे आर मोस्टली स्टेबल इन इंडिया. राइट. लो इन्फ्लेशन फेज हम देख रहे हैं, ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड्स है. तो वो सारी चीजें एक है जो इंडिया को एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बनाती है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स. एंड देयर कुड बी अ पोटेंशियल trade deal with the US in the upcoming year. That also will help of foreign investors flocking the Indian market. So these are some of the things. So एक ऑप्टिमिज्म है एनालिस्ट की तरफ से कि हाँ 2026 में थिंग्स में चेंज. ऑलराइट. सो एक एमसीक्यू देख लेते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक. सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग. Just try to solve the question. The Indian stock market has witnessed record selling by the foreign portfolio investors in Indian equity in 2025. Second statement is the domestic institutional investors have also been net seller in the Indian stock market. And the third, the foreign portfolio investors have also sold off a net rupees 59,000 crores in the Indian debt market in 2025. So you have to tell which of the following statement is are correct. All right. तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है. दैट इज व्हाट वी हैव सीन कि रिकॉर्ड आउटफ्लो रहा है बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन द इंडियन इक्विटी मार्केट. बट domestic institutional investors and FPI in the Indian debt market, there have been the net inflows. So because of that, both these statements are correct. All right. So domestic institutional investors have been not net seller, but net buyer. All right. So, all right. That is what the idea. And then FPIs have also sold off, not sold off, but they have bought a net rupees 59,000 crore in the Indian debt market. So this is incorrect, this is incorrect, and this is correct. So correct option here is option A. All right. So with this, we come to an end of this video. All right. Thank you.